Hello everyone and welcome to my class. To continue with the third chapter, Nazism and the Rise of Hitler of class 9th history. In this video, we'll be discussing about the effects of the First World War on Germany. Right, in my previous video, I have given you a brief introduction about Nazism, and I have already discussed about the humiliating terms of Treaty of Versailles. Right, if you have not seen that video, please watch that video. Right, so to continue with that, we'll be doing this topic, effects of the First World War on Germany. So let's not waste the time and let's start the topic. As I told you, the First World War started in 1914 and it ended in 1918 with the defeat of Germany, right? And a very humiliating treaty was imposed on Germany. That treaty was Treaty of Versailles, and this was the time when the German ruler, he abdicated the throne, and a new parliamentarian government was formed in Germany. It was called Weimar Republic, right? So now see what were the effects of the First World War on Germany. First of all, the humiliating Treaty of Versailles was imposed on Germany. The newly formed government, Weimar Republic in Germany, they were forced to accept the terms of Treaty of Versailles, right? Then Germany was held responsible for the war, and Germany was required to pay heavy war compensation to the winning nation. This we have already covered in the terms of Treaty of Versailles. जर्मनी को दोषी पाया माना गया कि जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है, और इसलिए जर्मनी अब जो भी वॉर में खर्चा हुआ है दूसरे देशों का, विनर नेशंस का, उन्हें पे करेगा. सो द अमाउंट वाज फिक्स्ड अराउंड 6 million pounds, right? A huge amount. Now the socialist, Catholics and the Democrats, if you are not aware of these words, please watch my video on socialism in Europe and rise of and the Russian Revolution, the second chapter. I have discussed these words in details, right? So please watch that video. You will be requiring these words in your answers, and you should know the meaning of these words, right? So socialist, Catholics, Democrats supported the Weimar Republic. जो नई गवर्नमेंट बनी थी जर्मनी में, वेमर रिपब्लिक, वो इन ग्रुप्स के सपोर्ट के वजह से बनी थी. एंड इन ग्रुप्स को नवंबर क्रिमिनल्स कहा गया, क्योंकि नवंबर क्रिमिनल्स उन्हें कंजर्वेटिव नेशनलिस्ट ने कहा, क्योंकि इन ग्रुप्स की वजह से ये नई सरकार जो बनी, जो नवंबर के महीने में बनी थी, वो देश के खिलाफ काम कर रही थी. वो उन्होंने ट्रीटी ऑफ वर्साइल के टर्म्स को एक्सेप्ट किया था. सो दे वर हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सेप्टिंग सच ह्यूमिलेटिंग टर्म्स ऑफ ट्रीटी ऑफ वर्साइल, एंड दे वर सीन एज अ क्रिमिनल्स ऑफ द नेशन, राइट? सो इस तरह की भावना आ रही थी कि जो सरकार है वो इस तरह के टर्म्स को कैसे एक्सेप्ट कर सकती है, इसीलिए उन्हें क्रिमिनल्स कहा गया, नवंबर क्रिमिनल्स. नवंबर इसलिए बिकॉज वेमर रिपब्लिक वॉज फॉर्म्ड इन द मंथ ऑफ नवंबर. क्रिमिनल्स इसलिए बिकॉज दे हैव डन एक्ट अगेंस्ट द नेशनल ऑनर, राइट? नाउ वॉर ग्लोरिफाइड द सोल्जर्स. लड़ाई से अभी यूरोप उभरा था और सोल्जर्स को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा था कि सोल्जर्स की लाइफ कितनी टफ होती है, दे फाइट फॉर देयर नेशन, और इस तरह से उनके इमेजेस को पॉपुलराइज किया जा रहा था. पॉलिटिशियंस एंड पब्लिसिस्ट बिलीव दैट मेन शुड बी स्ट्रॉन्ग एंड एग्रेसिव. उनका मानना था पॉलिटिशियंस का इस समय पे कि आदमी लोगों को स्ट्रॉन्ग और एग्रेसिव होना चाहिए, इतना कि अपने देश के लिए लड़ सकें, right? Aggressive war means the Germany was believing in the Spartan spirit. Now Sparta, Athens, ये ग्रीस के जो है पुराने वो स्टेट्स माने जाते हैं, एंशिएंट टाइम के स्टेट्स माने जाते हैं, और ये जाने जाते थे अपनी वॉर स्किल्स के लिए. बहुत ही बहादुर सोल्जर्स होते थे ये, इस रेस के लोग. तो दे स्टार्टेड ग्लोरीफाइंग कि लोगों को स्पार्टन्स की तरह होना चाहिए जो अपने देश के लिए लड़ सकें. वैसे ही मस्कुलिन बॉडी होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ताकि वो जब भी देश को ज़रूरत हो अपने देश के लिए लड़ सकें. नाउ एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा, national honor and conservative dictatorship was highlighted, were very common at that time. ये वो समय था जब नेशनल ऑनर
और एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा होता था, मतलब लड़ाई के लिए अगर कोई लड़ रहा है अपने देश के लिए तो वो सम्मान की बात होती थी, राइट। नेशनल ऑनर, देश को बचाना एक तरह से कि प्राइम ड्यूटी होनी चाहिए एक सिटीजन की। और कंजर्वेटिव डिक्टेटरशिप में ये बिलीव करते थे, मींस रूलर ऐसा होना चाहिए जो कि मिलिटरली स्ट्रांग हो, जो देश को लीड कर सके, राइट। इस तरह के जो विचार थे वो वॉर के बाद जो है देशों में, यूरोपियन देशों में देखे गए, क्योंकि यूरोप इस समय इस दौर से गुजर रहा था जब उन्होंने वॉर फेस की थी। और अभी भी वॉर के बाद भी कुछ साल उनके बीच में एक दूसरे को लेकर, एक दूसरे नेशंस को लेकर सस्पिशन था, शक था। इसीलिए वो ये नहीं चाहते थे कि कभी भी जब दोबारा वॉर हो तो हम उस कंडीशन में प्रिपेयर्ड रहने चाहिए। सो दे वर सपोर्टिंग एग्रेसिव वॉर प्रोपोगेंडा and they were glorifying the life of soldiers, right. The idea of democracy was very fragile. This was the time when democracy was a new idea, and democracy, this idea was young at that time and could not survive, because democracy में राइट्स की बात होती है, इक्वालिटी की बात होती है, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होनी चाहिए, जनता चुननी चाहिए। लेकिन अभी इस समय देश जो है वो इस चीज़ के लिए ज़्यादा फोकस कर रहे थे कि देशों में मिलिट्री लीडर्स होने चाहिए जो देश को लीड कर सकें। they were believing that the nation should be headed by a strong personality, so that if in case any situation arise where the nation needs to fight a war against another nation, then they should be prepared for that, right. So these were the ideological changes that took place after the First World War, and it was very common in Germany, because Germany को suppress किया जा रहा था, जर्मनी को दबाया जा रहा था दूसरे देशों द्वारा। जर्मनी हारा हुआ देश था इस समय, right. Now talking about the political radicalism and economic crisis, I'll be doing economic crisis in the next video in further detail, in more detail. This is a very important topic. Now in this portion I'll be connecting political radicalism with economic crisis, right. Now political radicalism क्या था कि politics wise क्या चेंजेस होने चाहिए, वो एक्सपेक्ट जर्मनी में क्या लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, राइट। रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ द स्पार्टासिस्ट लीग इन जर्मनी टुक प्लेस। वेमेर रिपब्लिक फॉर्म हुआ, और वही समय था जब स्पार्टासिस्ट लीग जो था एक ग्रुप था जो बिलीव करते थे मार्शल स्किल्स में, लोगों को एग्रेसिव होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, इस तरह के आइडियाज़ में। एंड दे वर सपोर्टिंग द सोल्जर्स ऑल्सो, मीन्स इस लीग ने जो है रेवोल्यूशन किया जर्मनी में कि वी डोंट रिक्वायर द पार्लियामेंट, वी डोंट रिक्वायर द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, बट वी नीड मोर सोल्जर्स who can fight. We need such a leader who can lead us, military leader, right. And they have taken the example of Russian Revolution, क्योंकि रशिया में 1917 में रशियन रेवोल्यूशन हुआ था। तो वहाँ पे जिस तरह से लोगों ने, आम जनता ने सोल्जर्स के साथ मिलकर अपने ही राजा को हटाया और सरकार बनाई, अपनी ही सरकार बनाई, तो उसी तरह का चेंजेस जो थे स्पार्टासिस्ट लीग और जो ऑर्गेनाइजेशन थी ये चाहती थी जर्मनी में। इसीलिए रशियन रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लेकर उन्होंने सोवियट्स ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स भी बनाई। सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स जो है, सोवियत वर्ड होता है यूनियन, इस तरह से यूनियन फॉर्म की ताकि उन्हें ऑर्गेनाइज करना आसान रहे, राइट. सो दिस वाज अ चेंज दैट टुक प्लेस, बट देयर एफर्ट्स वर सप्रेस्ड बाय द वेमेर गवर्नमेंट with the help of the war veterans. War veterans होते हैं जो लड़ाई में लड़ चुके सोल्जर्स हैं, those who are experienced, those who have fought in the war. तो जो लड़ाई में लड़े हुए सोल्जर्स थे उनकी मदद से, वॉर वेटरन्स की मदद से, वेमेर रिपब्लिक क्रश्ड दिस रेवोल्यूशन इन जर्मनी। जो स्पार्टासिस्ट लीग ने रेवोल्यूशन किया था उसे सप्रेस किया गया, और वॉर वेटरन्स को जर्मनी में फ्री कॉर्प्स भी कहा गया। फ्री कॉर्प्स में मतलब वो सोल्जर्स, कॉर्प्स मतलब सोल्जर्स, वो सोल्जर्स जो एनी टाइम इफ द गवर्नमेंट वांटेड दे वर रेडी टू फाइट। तो
तो इसीलिए उन्हें वॉर वेटरन्स को फ्री कॉप्स की मदद या वॉर वेटरन्स जिन्हें फ्री कॉप्स कहा गया, उनकी मदद से वेमर रिपब्लिक ने स्पार्टसिस्ट लीग को सप्रेस किया, उनके रेवोल्यूशन को सप्रेस किया। ये जो स्पार्टसिस्ट लीग थी, इसने बाद में जाके कम्युनिस्ट पार्टी बनाई, एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई अपनी, उसका नाम था कम्युनिस्ट पार्टी। नाउ इन 1923 इकोनॉमिक क्राइसिस जर्मनी में इतना बढ़ गया कि सबसे इम्पॉर्टेंट जो रीज़न था इकोनॉमिक क्राइसिस का जर्मनी में, वो ये था कि लड़ाई के बाद जर्मनी वॉज रिक्वायर्ड टू पे वॉर कॉम्पनसेशन। एज आई टोल्ड यू, 6 मिलियन पाउंड्स वर एक्सपेक्टेड फ्रॉम जर्मनी, that Germany will going to pay to the winner nations, right? So ऐसे में जर्मनी का जितना भी जो वॉर कंपनसेशन अमाउंट था वो गोल्ड में पे किया जाता था, राइट? और गोल्ड में पे करने की वजह से जो जर्मनी के जो गोल्ड डिपॉजिट्स थे वो रिड्यूस होने स्टार्ट हुए। मोर ओवर, अकॉर्डिंग टू ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जो इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल एरियाज थे जर्मनी के, जो इम्पोर्टेंट कोल माइंस एंड थी, उन्हें दूसरे देशों ने कैप्चर कर लिया था जर्मनी में, राइट? तो ऐसे में जब उनका इंडस्ट्रियल एरिया उनके पास नहीं है, उनके रिसोर्स एरियाज उनके पास नहीं है, तो ऐसे में जर्मनी जो है वो इस स्थिति, इस सिचुएशन में नहीं था कि वो वॉर कंपनसेशन दूसरे देशों को पे कर सके, पैसा जो है दूसरे देशों को पे कर सके। तो जब गोल्ड में वो पे नहीं कर पाया, तो जर्मनी की सरकार ने क्या किया, करेंसी जो जर्मन मार्क्स जिसे बोलते हैं, वहाँ मार्क्स चलता है, इंडिया में रुपया चलता है, वैसे जर्मनी में मार्क्स चलता है, तो करेंसी को पब्लिश करना स्टार्ट किया, पेपर करेंसी को बहुत ज़्यादा उन्होंने प्रिंट करना स्टार्ट किया, जिससे कि क्या हुआ, उसकी वैल्यू घट गई, राइट? इतनी घट गई कि एक नॉर्मल पीस ऑफ ब्रेड के लिए जो है वो बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, तब ब्रेड मिलता था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि लोग वहाँ पे बोरियों में पेपर नोट्स भर के जाते थे और उसके बदले में एक चीज़ खरीद पाते थे, इतना वैल्यू डाउन था। और एज कम्पेयर टू डॉलर, जर्मनी के जो मार्क्स का वैल्यू था वो ट्रिमेंडसली डिक्लाइन हो गई, यहाँ तक कि $1 की कीमत जर्मनी में ट्रिलियंस में चली गई, जर्मनी के मार्क्स में, राइट? So this is all about the economic crisis that Germany was undergoing through. ऐसी situation में it was America which came to the forefront, and America introduced the Deuce Plan to help Germany. अमेरिका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी के अगेंस्ट लड़ा था, लेकिन जब उसने देखा कि जर्मनी जो है वो उसको इतना पैसा नहीं है कि वो दूसरे देशों को पे कर सके, मोर ओवर जर्मनी में अपने पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, जनता जो है सड़कों पर आ गई थी, तो ऐसी सिचुएशन में एक हाइपर इन्फ्लेशन वाली जो सिचुएशन होती है, हाइपर इन्फ्लेशन होता है बहुत अत्यधिक महंगाई, जिसमें कि अ कॉमन पर्सन कैन नॉट बाय द बेसिक थिंग्स। तो ऐसी सिचुएशन में अमेरिका स्टूड फॉर द हेल्प ऑफ जर्मनी, और उन्होंने ड्यूइस प्लान लॉन्च किया टू रिड्यूस द बर्डन ऑफ जर्मनी, राइट? So this was about the economic crisis under which the Germany was going through at that time, and this problem became further worst when we'll discuss the economic crisis or the Great Depression in the next video, right? So please watch these videos in continuous series वन बाय वन, बिकॉज अगर आप बीच से कहीं से भी कोई भी वीडियो देखेंगे तो आप लिंक नहीं कर पाएंगे कि बैकग्राउंड में क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं. सो वॉच द वीडियोस इन प्रॉपर सीक्वेंस, right? This will help you in understanding the terms which are new for you, and in understanding, in proper understanding the facts in line कि if this incident is took place तो उसके पीछे reasons क्या थे, क्या circumstances थे. That will be more clear if you watch these in proper sequence. So please wait for the next video. Please like, share and review, and please subscribe this channel. Thank you.